many chemical compositions like LSD. LSD is a substance which actually, like morphine, is used to kill, alleviate pain. That is under medical prescription. But when it is given as a pleasure-seeking drug, like dopamine, like morphine, so all these drugs lay adverse effect on physical and psychological health of an individual. If a person is addicted to drugs, his health, multi-dimensional health, his energy system, his emotional, mental balance will fall into tantrums. Drugs are taken in large quantities, even diazepam. Diazepam comes as a sleeping pill. If you don't take that drug under the doctor's prescription, if you are taking on your own, it will form a severe habit, and if you are totally tired also for the day, you have to take diazepam for getting sleep. If you are taking one tablet today, after 6 months you need to take 4 tablets. After 2 or 3 years you need to take 10 tablets. Because as you go on taking, body will develop resistance and you start to depend totally on the intake of the drug, even for getting a few hours of sleep. No control or little control on their thoughts and emotions. When initially, for the first time or for the second time, when you take some drug, it gives you a promising pleasure, mental pleasure, bodily pleasure. But if you go on taking that drug, it will enslave your total body, your mind, and your social life. So today, the nation is observing this day as Nasha Mukt Bharat. So we must be thankful to the government of India and for the local administration and for our principal sir, and NCC, NSS program officers for organizing this wonderful event, so that student community can get ample, sufficient awareness about this drug addiction. So today we are observing Nasha Mukt Bharat. So after a few speeches, we are going to take a pledge. Thank you, sir. Sir, जैसा कहा है कि today we are observing the नशा मुक्त भारत डे. तो आज के दिन कमिश्नर से भी हमको एक मैसेज आया है, और कल रात में जैसे ही मैंने वो लिंक दिया था, अच्छी बात है कि हमारे कॉलेज के बच्चे इसको रिस्पॉन्ड किए. ऑलमोस्ट 40 to 50 स्टूडेंट्स दे हैव सबमिटेड देयर प्लेजेस and they receive certificate. A good habit from our college side that students are responding to the government message. गवर्नमेंट यही चाहती है कि हिंदुस्तान जो है, यंग इंडिया आप लोगों के हाथ में, ये जो अबव 18 है, और सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, इविल पीपल आर देयर. तो ये लोग क्या करते हैं, नौजवानों को टारगेट बनाकर ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं. तो बच्चों को पहले बस स्टैंड हो या कैसे थिएटर्स है या कोई भी ऐसे इलाके हैं, वहाँ बुलाकर, जैसे हैदराबाद है, वहाँ पर नाइट में बहुत सारे पोलो क्लब्स होते हैं, जैसे पोलो खेलते हैं, इसमें गोल्फ खेलते हैं, और जो भी खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं. तो ऐसे क्लब्स में यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, जो ट्रैफिक करने वाले पहले बच्चों को फ्री में ड्रग देते हैं, और फ्री में ड्रग दिए बाद जब उनको हैबिट हो जाती है तो उनसे जो है पैसे क्लेम करते. और नौजवान बच्चों में ये जो बुरी आदत, जिसे लत कहते हैं उर्दू में, ऐसी पड़ जाती है कि माँ बाप से जोर जबरदस्ती करके घर में पैसे चोरी करके वो पैसे लेके जाते, बाद में घर में से सोना चुराते, और इसका जो है एंड जो है फिर क्राइम पे होता, मर्डर पे होता. तो इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक ड्रग फ्री कंट्री बने, तो इसके लिए मूवमेंट चलाया जा रहा. ये अच्छी बात है कि जहीराबाद टाउन हो या संगारेड्डी हो, यहाँ पर ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है. लेकिन हमारे पास सी टीम के पुलिस वाले आते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी आते हैं,
तो उनका कहना है कि दे आर हैविंग इनपुट, उनको ये इत्तला मिलती है कि जहीराबाद में भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, क्योंकि जहीराबाद जो है कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर से लगती है और ये बॉर्डर के इलाकों में आमतौर पर ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं। तो यंगस्टर्स खास तौर से बॉयज़ हो या जो भी गर्ल्स है, आप लोगों को ऐसे ही कोई लालच दे रहा है इवनिंग आवर्स में या बस स्टैंड में कि इधर उधर, तो आप फौरी जो है हायर ऑफिशियल्स को इत्तला दीजिए और पुलिस डिपार्टमेंट के भी जो फोन नंबर्स वगैरह है उनको भी इत्तला दीजिए और आप लोग भी एक हेल्दी लाइफ गुजारिए। हेल्दी लाइफ में यही है कि जैसे हमारे पास नरेंद्र मोदी साहब भी योगा एक्सपर्ट है, या अर्ली मॉर्निंग अगर हम उठेंगे एक्सरसाइज करेंगे और जो है नेचुरल डाइट जो हेल्दी फूड होती है ये फूड लेंगे तो आप हेल्दी लाइफ जिएंगे। और जैसे कहा जाता है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, तो हेल्दी बॉडी अगर है तो हेल्दी हमारा माइंड भी होगा और हम एक गुड सिटीजन बनेंगे। तो ये जो प्लेज लिए हैं तो आप इसको सोसाइटी में फैलाइए, इसके बारे में मैसेज भी दीजिए। अभी एक प्लेज होगा, उसके बाद एक दो लोग आप लोगों की तरफ से ये जो इनिशिएटिव आना है कि यस वी आर कमिंग फॉरवर्ड टू कीप आवर कंट्री ड्रग फ्री कंट्री। तो आप लोग जरा ये प्लेज हो के बाद एक दो लोग यहाँ पर आकर अपनी तरफ से बोलेंगे एज ए यूथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ वी आर बाउंड टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स। तो मैं मोटी साल से ख्वाहिश करूँगा कि तेलुगु में जरा बच्चों को फर्स्ट और तेलुगु చూద్దామా हाथ आगे करो, अटेंशन अटेंशन इधर दोनों पैर साथ में आना चाहिए, अटेंशन నాతో పాటు పలకండి। దేశ అభివృద్ధిలో ముఖ్యమైన పాత్ర వహించే మన యువత డ్రగ్ ఫ్రీ ఇండియా పథకంలో చేరుదాము। దేశం యొక్క ప్రజల యొక్క క్షేమం కోసం నషాముక్త్ భారత్ అభియాన్ కింద మనమంతా ఏకమై మన సమాజం కోసం, కుటుంబం కోసం, మిత్రుల కోసం డ్రగ్ ఫ్రీ అవుదామని ప్రమాణం చేద్దాం। నేను నా దేశాన్ని, నా జహీరాబాద్ పట్టణాన్ని డ్రగ్ ఫ్రీగా మార్చే దృఢ నిర్ణయం తీసుకున్నాను। నా సామర్థ్యానికి తగినంతగా ప్రయత్నిస్తానని ఈరోజు ప్రమాణం చేస్తున్నాను। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों का मंशियात से पाक भारत के मंसूबे में शामिल होना निहायत ज़रूरी है। आइए मुल्क के इस चैलेंज को कबूल करते हुए आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एकजा हों और अहद करें कि हम अपने माशरे, ख़ानदान, दोस्तों और ख़ुद को भी मंशियात से पाक बनाएंगे, क्योंकि तब्दीली का आगाज़ हमसे ही होना चाहिए। तो आइए हम सब मिलके जहीराबाद टाउन को मंशियात से पाक बनाने का पुख्ता अज़म करें। मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं अपनी भरपूर कोशिश से अपने मुल्क को मंशियात से पाक बनाने में हिस्सा लूँगा।